my question to you is, UGC is an independent body according to the best of my knowledge. Now, UGC has come up with a new policy which has a selfie points. Now, why are colleges looking at selfie points? I mean, I send my children to college पढ़ाई करने के लिए, selfie निकालने के लिए नहीं मैं बच्चों के साथ है. UGCs are very serious. It decides my child's future. This selfie point, Rudy ji, I would like to expand since he's asking me. UGC has taken out an order that colleges in India should make photographs of selfie points with the Honorable Prime Minister's photograph in the background. That's the explanation. I did not want to say it because I have very high regard. He's not only your Prime Minister, he's my Prime Minister also. So I was trying to keep this point away. But really, I don't send my child to learn how to take a selfie to school. Don't politicize. That is a bad. This is. It is. It's UCC. I have it. I can put it. I can table it. I can table it. I can table it. It's in the news. 2nd of December. I'm happy to yield. I'm happy to yield. I'm happy to yield. Minister is replying. Minister is replying. I'm happy to yield. Answer will be given in due time. Answer will be given in due time. It does not require to repeat again. And it is the Prime Minister's photograph. And students are being encouraged. Students are being encouraged to serve for the Vikshit Bharat. Okay. Madam, sir, I was trying to be as dignified about it. He's confirming it. Why don't we have the President of India? भाई आप लोग को क्या तकलीफ है अगर बच्चे इस देश का अगर प्रधानमंत्री जी के साथ कहीं भी फोटो खिंचवाना चाहते तो आपको क्या तकलीफ है? बोले दीजिए। आपको क्या तकलीफ है? हो गया। क्योंकि मैं समझ सकता हूँ उनकी पीड़ा। उनका समय नहीं लीजिए, बोले दीजिए। हम समझ गए वो लिखे था। महोदया, तो क्या आपत्ति है? क्या तकलीफ है? हो गया, समझ में आ गया, बैठ जाइए। हो गया, इन लोगों को समझ में आ गया। आप सुन लीजिए। अरे ब्या रूडी जी बोला जाए। मैं तैयार बैठा हूँ। हाँ बोलिए, अब बोलिए। अरे हो गया, क्या डिस्टर्ब कर रही हो? आप लोग इतने अच्छे से बोलवा लिए, उनको बोलने दीजिए। आप उनको बोलने दीजिए। बैठिए, प्लीज बैठ जाइए ना। 1 मिनट में खत्म करें। अब खत्म करें। 1 मिनट। अच्छा 1 मिनट खत्म करिए। 1 मिनट बैठ जाइए। 1 मिनट में खत्म करिए। 1 मिनट। Thank you. All I'm trying to make a statement is let's make our education inclusive was my limited point, which the suggestions which I made. And I appreciate the Honorable Minister also for coming honestly telling us what the UGC plan was. So I'm very grateful to you. So the record is set for the country what the truth is. And last line, I would like to quote, because like even the speaker from the Treasury bench quoted Mahatma Jyotiba Phule, he comes from the state where I come from. I was fortunate enough to be the only girl child to my parents out of choice. And I'm highly qualified education-wise. So I am one of those lucky girl child, as they call him. I don't call myself a girl child. I was born a single child to my parents out of a choice and a girl. But I was fortunate to be born in a liberal family and married into an even more liberal family, where education is very, very forward. So this, I would like to quote Mahatma Jyotiba Phule because of who I stand here today, is without education, wisdom was lost. Without wisdom, morals were lost. Without morals, development was lost. Without development, wealth was lost. Such has happened due to lack of education. So that's my limited point. So if you're making this intervention
for the tribal बहुत अच्छा। of this world. We welcome बहुत the अच्छा। step, we support it, but we make it as individual and make them global citizens and include them in the new education policy and come back with a more detailed, comprehensive bill to make it more effective is my limited choice. Thank you, madam. विशेष करके महिलाओं में आदरणीय सुप्रिया ताई ने महिलाओं के बारे में अच्छी चिंता की। मैं उस चिंता को स्वीकार भी करता हूं, लेकिन मैं 14 और 21-22 की कंपैरिजन देता हूं। 14 में जितने महिला पढ़ते थे, छात्रा पढ़ते थे, उस तुलना में आज 31.6% ज्यादा पढ़ रहे हैं। यही सरकार की उपलब्धि है। अगर मैं एसटी को पहले आऊं, आज एसटी की चर्चा हो रही है। एसटी की टोटल ग्रोथ में 65.2% ग्रोथ हुई है। सबसे ज्यादा ग्रोथ एसटी की हुई है। और उसमें माननीय मंत्री जी, अगर सदन की सहमति हो तो माननीय मंत्री जी के जवाब और विधेयक पारित होने तक समय बढ़ा दिया जाए। अध्यक्ष जी, मैं अगर एसटी गर्ल स्टूडेंट, शेड्यूल्ड ट्राइब गर्ल स्टूडेंट्स की कंपैरिजन 14-15 और 21-22 के बीच में करूंगा, 80% ग्रोथ हुई है। 80% ग्रोथ हुई है। एससी की टोटल ग्रोथ 43.8% हुई है और उसमें वुमेन लगभग 51% हुई है। ओबीसी 45% ग्रोथ हुई है, उसमें वुमेन 49.3% हुई है। पीएचडी, ओवरऑल पीएचडी देश में जितने विद्यार्थी कर रहे थे, उसमें पहले अगर 1,17,301 पीएचडी रजिस्ट्रेशन 14-15 में था। इस देश की वैज्ञानिक अप्रोच के कारण आज उसकी संख्या बढ़ के 2,13,000 हो चुकी है। इसमें 81% की ग्रोथ हुई है। महिला पीएचडी, यही तो अभी इस बार जब सुदीप दा और हमारे शौकत दा की चिंता होती थी कि भाई ये प्रधानमंत्री जी की सेल्फी पॉइंट क्यों बना रहे हो, इसीलिए बना रहे हैं कि देश के पहला प्रधानमंत्री जब चंद्रयान 3 की सक्सेस हुआ, वहां पहुंच के, बेंगलुरु पहुंच के उन्होंने उस वैज्ञानिक के अंदर जो महिला वैज्ञानिक काम कर रहे थे, सबसे ज्यादा प्रशंसा उन्हीं का किया। क्या यह गौरव की विषय नहीं है? क्या देश के प्रधानमंत्री कोई दल के होते हैं? क्या कोई वर्ग के होते हैं? हम बचपन से दिख के आ रहे हैं, हमारे वहां स्कूलों में और ऑफिसेस में राष्ट्रपति जी का और प्रधानमंत्री जी का और जाति के जो फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी का फोटो लगे रहता है। कि अगर दादा प्लीज, अगर आज हम हमारी देश की गौरव बढ़ाने वाला, विश्व में भारत को अव्वल नंबर तक पहुंचाने का, विकसित भारत बनाने की आह्वान देने वाला नेता का अगर हम गौरव से सेल्फी पॉइंट लगाते हैं, ये प्रजातंत्र है। आपकी क्या दिक्कत है? आप गौरव करो, आपको नहीं उठाना तो मत उठाओ। बच्चे तो उठा ही रहे, बच्चे तो उठा, कंपलसरी तो है नहीं, बच्चे तो उठा रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज महिला पीएचडी, इसीलिए मैं इसको उल्लेख कर रहा हूं, आज महिला पीएचडी 106% ग्रोथ हुई है 14-15 से। सुप्रिया ताई, 14-15 में बागडोर आपके हाथ में था, आपके हाथ में मौका था, आपके हाथ में मौका था। पीढ़ी दर पीढ़ी वहां बैठे हुए मित्रों की पीढ़ी दर पीढ़ी देश और राज्यों के शासन के दायित्व में थे, आपको किसी ने मना नहीं किया था। अगर आज हमें सेवा की मौका मिली है, हमने फोकस किया है। 106% ताई महिलाओं की पीएचडी करने वालों की संख्या बढ़ी है इस सरकार देश में। ना कॉर्पोरेट का एजेंडा, ना राजनीतिक पार्टी का प्रोपोगेंडा। बात इस देश में लोकतंत्र को बरकरार रखने की, बात आपके हित की, बात आपके भविष्य की। जब मुझे किसी एजेंडा के तहत सवाल पूछने कहा गया तो मैंने नौकरी से इस्तीफा देना सही समझा, क्योंकि हम आपके लिए सवाल पूछते हैं, किसी कॉर्पोरेट घराने के लिए नहीं। और अब इस नई जगह पर भी सवाल आपके लिए ही पूछेंगे।
केवल यह माइक बदला है, तेवर और अंदाज नहीं। देखिए इंडिया दिस वीक हर हफ्ते केवल HW न्यूज नेटवर्क पर।